Good morning, students. In science, we are reading chapter 4 neutralization and formation of salt. Neutralization reaction and formation of salt. Yani our topic today is salts. Okay. We have read about acids, we have read about bases, and today our topic is salts. So we have read while reading about bases that how salts can be formed. The salts can be formed and, by a reaction called neutralization reaction. So what is a neutralization reaction? The neutralization reaction is a reaction between an acid and a base. Acid and a base forming salt and water. So we can prepare salt by the help of neutralization reaction, acid base reactions. Okay. And I have given you several examples of neutralization reaction. Suppose this is one neutralization reaction. I have already discussed yesterday, but in this video, video again I am trying to make you convince. So suppose sodium hydroxide and HCl. Sodium hydroxide is base. Why it is base? Because it has got hydroxide ion, OH ion, and why it is acid? Because it has got hydrogen ion. So when base and acid react together, suppose you have taken both these in a test tube. These acid base are so reactive chemicals; they will react immediately, producing salt and water. So NaCl and water. देखो इस रिएक्शन में देयर इज सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयंस हैव टेकन प्लेस कुछ नहीं हुआ है देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस व्हाट एक्सचेंज पॉजिटिव नेगेटिव देखो सोडियम इज बेस का पॉजिटिव आयन और एसिड का नेगेटिव आयन लो तो क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl you are getting sodium ion chloride on so they are opposite they have got opposite electrical charge so there will be force of attraction and they will combine forming a compound NaCl. So that is how NaCl is formed. How water is formed? Now acid का positive ion और base का negative ion. And take the positive ion of the acid, hydrogen ion, and negative ion, hydroxide ion of the base. And so if they combine, there will be two hydrogen atom, one oxygen atom. So you will get H2O water. Okay. So mechanism देखो वही mechanism में भी simple ही है. Now if it is dissolved in water, है ना, base will produce ions. So sodium ion and hydroxide will get separated, है ना, if in water solution. Similarly, if you take the solution of the acid, then these two ion, hydrogen ion and chloride ion, will be separated. So within the test tube or within the container or within the beaker, you are getting four types of ion, two sets, positive negative, positive negative. Okay. So exchange हो गया देखो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव एसिड बेस में आयंस जो है एक्सचेंज हो रहा है एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव सो इन दिस वे NaCl sodium chloride is formed and H2O is formed water. So देखो इसमें न्यूट्रलाइज why is this reaction is acid base reactions are called neutralization reaction because the ions which are responsible for showing acidic and basic character they have all gone and they have combined themselves and formed water which is neutral and that is why it is called neutralization reaction. Even if you test the nature of NaCl sodium chloride form its solution will also be neutral in nature and that is why we have taken acid and a base but got neutral things. Okay, and that is why these reactions are called neutralization reactions. So there are various examples. I have already shown you another potassium hydroxide and sulfuric acid, just mutual exchange between positive and negative ion, potassium sulfate, hydrogen hydroxide ion, you will get salt and water. Very easy, very easy. Magnesium hydroxide and nitric acid, so just exchange of ions, magnesium ion and nitrate ion, this is positive, this is negative, this is positive, this is negative, you will get the salt and water. अब वही mechanism बार बार repeat करने की कोई जरूरत नहीं है. Many of you were convinced yesterday. I responded nicely. So let us now come to naming of salts. So salts are, how are the salts named? Now salts are named on the basis of the anion present in the acids. Okay, yeah, acids taken. Salts are named on the basis of the acids taken in the formation of the salt in the neutralization reaction. If I use sulfuric acid in the neutralization reaction, then the salt formed will be called sulfate. If I take the acid HCl, then chloride ion is there, so there will be chloride. If I take nitric acid in the neutralization reaction as acid, if I take nitric acid at the acid in the neutralization reaction, then the salt that will be formed will be named as nitrate. If I take sulfurous acid, then that will be called sulfite ion. SO3 is sulfite ion, so sulfite salts. Then carbonate, if I take carbonic acid, I shall get the carbonate salt. If I take acetic acid, then this is the acetate ion. COOH is the acetate ion. So that we shall get acetate salts. Okay. So sodium acetate, calcium acetate, etc. ये कैल्शियम सल्फेट यहाँ क्या लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड लिया है सोडियम नाइट्रेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड लिया है तब ना नाइट्रेट आया है
नाइट्रोजन नेगेटिव आयन आता है वो एसिड से आता है, तो एसिड अगर हो तो हाइड्रोजन मिला देंगे। तो हम सब अब आगे दिखाएंगे कैसे हम सब कौन सा एसिड और बेस का ये सॉल्ट है, वेरी इजी टू लोकेट। Then we have read the properties of salts. We have read the three properties of salts. What salts are formed by the reaction between an acid and a base. Most of the salts are readily soluble in water, and salts do not conduct electricity in their solid state, but they can do so in their molten states or in their solution states. And they can conduct electricity in the solution state or molten state. And here's the activity for that. Okay, this is a circuit having a cell, an indicator bulb, two electrodes, and if the electrodes are, suppose if I do not take this solution, and if I just connect these two electrodes or the wire, the bulb will glow. Why? Because it is getting a complete circuit. But suppose you keep a salt solution in the beaker and insert the two electrodes and keeping them separated, then also you will see that the indicator bulb glows. What does it indicate? Now, it indicates that salt solutions also help in conducting electricity. Okay, so in solution state, and we know that salts can conduct electricity in their solution state. So thus, just in proof of that, this is the activity. Okay, this activity shows that salt solution can conduct electricity, that has been indicated by glowing of the bulb. Had the bulb not been glown, then the salts cannot. We can say that salts cannot conduct electricity. But since the bulb or indicator bulb is glowing, it is a proof that salt solutions are helping in conducting current or electricity. Okay, so salt solutions are a good conductors of electricity. Then classification of salts. Okay, now salts are of three types, and as nature of the salts, yeah, solution, if you test the nature of salt solution, then those are of three types. Okay, suppose sodium chloride को तुम पानी में घुलो, and you will get a solution of sodium chloride salt, and test what will be the nature. Nature, so nature of the salt solution may be neutral or acidic or basic. तो neutral salt कब बनेगा, है ना, when a salt will be neutral salt. now देखो definition is very simple. Salts formed by the reaction between a strong acid and a strong base are the neutral salts, are neutral. अगर strong acid strong base लेंगे, then what shall you get? We shall get a neutral salt. Okay, so come to certain notes that I have given you. I shall give you the notes also. Properties of salts we have read about. Now come to neutral salts. देखो neutral salts. The salts form neutral salt है ना ये. The salts formed by the reaction between a strong acid and a strong base are called neutral salts. That's a strong base law. I have already given you a list of, देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या किया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, है ना, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड. these are all strong acids and these are all strong bases. So if there is reaction between strong acid and strong base, the acid base reaction में salt तो बनेगा. Then what will be the nature of that salt? Now that salt will be a neutral salt. देखो कैसे ना, NaOH लिए हो, देखो strong base और sulfuric acid is strong acid, so we are getting a salt. So sodium sulfate, क्यों, sodium positive, sulfate negative, so you are getting sodium sulfate and water. So sodium sulfate का आप solution बनाओ, है ना, make a solution of sodium sulfate and test with a litmus paper. Okay, so if you take a blue litmus paper, it will remain blue. If you take a red litmus paper, it will remain red. There will be no change, है ना. That indicates that what, it is neither acidic nor basic. Okay, they will not show any change in color. अच्छा, if so it is a neutral salt. Then again you see how to find the nature of, वो तो बाद में बताएंगे. तो इस तरह से अगर strong acid strong base होगा, the salt form will be a neutral, it will not respond to the action of litmus, है ना, indicator. Now come to basic salts. देखो what are basic salts? So neutral salt, basic salt or acidic salt, and salt solutions may be tested as neutral, may be basic or may be acidic. तो acidic, basic और neutral टेस्ट करने के लिए हम इंडिकेटर चाहिए, तो इंडिकेटर का मदद से हम सब टेस्ट कर लेते हैं. कैसे? how are basic salts formed? The salts formed by the reaction between a strong base and a weak acid. देखो acid base reaction में salt बनता है, तो if you take a strong base and a weak acid, then the resulting salt will be a basic salt. कैसे? The strong base and weak acid are called the basic salts. देखो तो strong base लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड. देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड क्या है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है. तो वी आर नाउ परफॉर्मिंग रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड, सो वी शैल गेट ए सॉल्ट. एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट तो बनेगा, सो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट. ओके, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सोडियम सॉल्ट, sodium carbonate. Now make a solution of it. Okay, and now test with the
सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट देखो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, तो ये बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, तो ये सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। सोल्यूशन बेसिक अगर हो तो कैसा टेस्ट कर पाएंगे ना, तब तो रेड लिटमस को डालो, रेड लिटमस अगर ब्लू चेंज हो जाएगा देन इट विल confirm that the solution is a base, है ना। if the solution can change red litmus paper into a blue one, then we can say that we can certainly say that the solution is basic one, तो वही होगा, है ना। सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन में अगर रेड लिटमस डालेंगे तो ब्लू चेंज हो जाएगा। सो इट इंडिकेट्स दैट सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट इज ए बेसिक वन, है ना, क्योंकि सोल्यूशन बेसिक, तो वी कैन से दैट सॉल्ट इज ए बेसिक सॉल्ट, वी कैन से दैट सॉल्ट इज ए बेसिक सॉल्ट, व्हाई इट्स सोल्यूशन इज गिविंग बेसिक नेचर। ओके, सो अब देखिए इस तरह से स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अब तो अब एक तो हम नेक्स्ट चार्ट बना दे रहे हैं तुमको, कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस तब क्या होगा, बाकी जो भी बेस होगा, जो भी हाइड्रोक्साइड मिलेगा वो वीक बेस होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, दिस इज फेरस हाइड्रोक्साइड, दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फेरस मतलब ये 2+, आयरन का चार्ज कितना है 2+, और यहाँ आयरन का चार्ज कितना है 3+, इसलिए वो OH होल 3 ले लिया है, यहाँ होल 2 ले लिया है। So this is ferric hydroxide, ferrous hydroxide, and this is ferric hydroxide, etc. So these are strong base and weak base हो गया। Similarly एसिड में आओ, strong acid, weak acid, strong acid कौन कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, है ना। फॉस्फोरिक एसिड तुम्हारा एक्चुअली है वीक, लेकिन तुम्हारा किताब में दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग, सो मान लो ये स्ट्रॉन्ग ही है ना। वीक एसिड माना तो वीक एसिड क्या हो जाएगा, देखो कार्बोनिक एसिड, ओके, फॉर्मिक एसिड जो कि एंड में चीटी में जो मिलता है जलन करता है, एस्टिक एसिड जो विनीगर में है, ठीक है, एस्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दीज आर ऑल वीक एसिड्स, है ना। ऑल एडिबल एसिड्स जो भी फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में है वो सब क्या वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स है, और ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ठीक है। लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑल आर वीक एसिड्स, ठीक। तो इतना में से अब तो हमें स्ट्रॉन्ग और वीक सब पता चल गया। तो अब अगर हम ये याद रखेंगे, इज इट द एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग और ए weak one, or a base is a strong or a weak one, then I can easily predict or tell about the nature of the salt form। तो बेसिक सॉल्ट में तब आ जाओ, द सॉल्ट्स फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक तो वीक एसिड लो कार्बोनिक एसिड, सो द सॉल्ट फॉर्म विद द सोडियम कार्बोनेट। देखो ये तो पॉजिटिव हम ऑलरेडी बोले हैं, कैसे सॉल्ट बनाओगे, जस्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज, एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव, बेस का पॉजिटिव लो एसिड का नेगेटिव आयन, तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और वाटर कैसे, एसिड का पॉजिटिव और बेस का नेगेटिव मिलकर वाटर हो जाता है, वेरी सिंपल, ओके। So in this way we can form basic salts। अब आगे हम बता रहे हैं, now another type of salt that may be acidic in nature, okay। So what are acidic salts, the salts formed by the reaction between a strong acid and a weak base is called acidic salt। अब देखो एसिड बेस में से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे और बेस को वीक ले लेंगे, तब सॉल्ट जो बनेगा उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जैसे बेसिक सॉल्ट में देखे, है ना, बेसिक सॉल्ट कब बन रहा था, जब बेस स्ट्रॉन्ग लिए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिए हैं। So if I take strong base and weak acid, salt formed will be basic salt। Similarly, if I take strong acid and weak base, then the salt formed will be acidic salt, okay। Why, because you have taken strong acid and weak base, so the salt formed is a weak acidic one। तो एग्जाम्पल में आ जाओ, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम क्या बताए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग बेसेस, बट इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड other than those two, so it is a weak base, and nitric acid is a strong acid, ठीक है। So acid base reaction will take place because it is one is acid, other is base, so salt will be formed। So how the salt form, ना एक का पॉजिटिव दूसरा का नेगेटिव ले लो, बेस का पॉजिटिव आयन एसिड का नेगेटिव आयन, यू विल गेट द सॉल्ट मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 होल 2 हो गया, नाइट्रेट का आयन -1 है इसलिए ये 2 ले लिया, और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर वाटर हो गया। तो नाउ वी हैव गॉट मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट। What is the nature of this salt, it will be acidic, why, now here the acid is strong and base is weak one, ठीक है। नाइट्रेट आयन इज वेरी, नाइट्रेट आयन कहाँ से आया, नाइट्रिक एसिड से आया, तो नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और मैग्नीशियम आया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस से आया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, so it is a weak base, and that is why this is acidic salt। Why I am repeating again, why magnesium nitrate is an acidic salt, now because it is a salt of strong acid and weak base। ये नाइट्रेट आयन से ही पता चल जाएगा, नाइट्रेट आयन कहाँ कौन एसिड में है, नाइट्रिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मैग्नीशियम बेस से मैग्नीशियम आयन आया है ना, एसिड से नाइट्रेट आयन आया है, इसलिए इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। तो इसका सोल्यूशन बनाओ, मैग्नीशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाओ, और एसिड क्या कर सकता है, ब्लू को रेड बना पाएगा। सो ट्राई टू डीप ए एंड पुट ए स्मॉल पीस ऑफ blue litmus paper, you will find easily that it is changing into red color, indicating that solution of magnesium nitrate is acidic in nature. Hence we can say that magnesium nitrate is an acidic salt. Okay. सो मैग्नीशियम नाइट्रेट फॉर्म इज एन एसिडिक सॉल्ट, क्यों ना, मैग्नीशियम देखो नाइट्रेट इट इज, देखो अब मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट हुआ है, मैग्नीशियम नाइट्रेट जो बना है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और बेस क्या है ना, नाइट्रेट आयन है तो इसलिए नाइट्रिक एसिड बनाओ, और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेस बनाने के लिए क्या जरूरत है, हाइड्रोक्साइड आयन, और एसिड बनाने के लिए क्या जरूरत है, हाइड्रोजन आयन। तो देखो नाइट्रेट आयन के साथ हाइड्रोजन दे दो तो ये नाइट्रिक एसिड हो गया, और मैग्नीशियम के साथ OH जोड़ दो तो वो इसका बेस हो जाएगा। सो इस सॉल्ट का कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस क्या है ना, नाइट्रिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सब एक तो सॉल्ट से तो अब एक तो सॉल्ट बना है, तो एसिड बेस रिएक्शन से ही ना बना है, तो कौन सा एसिड और कौन सा बेस बना हुआ है, कैसे पता लगाओगे, तो यही है उसका उपाय। नाइट्रेट आयन है तो नाइट्रेट यानी नाइट्रिक एसिड से है, तो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन आयन बना दे दो, इसके साथ हाइड्रोजन एसिड में हाइड्रोजन आयन रहेगा तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव दे दो, है ना, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो मैग्नीशियम पॉजिटिव, इसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन दो। हमारे एसिड बेस बनाने के लिए कौन सा आयन चाहिए, एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन, और बेस बनाने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन तो पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन है नेगेटिव, तो मैग्नीशियम जो कि पॉजिटिव है उसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन दे दो, और नाइट्रेट आयन जो कि नेगेटिव है उसके साथ हाइड्रोजन आयन दे दो, ऑटोमेटिकली एसिड एंड बेस आर फॉर्म। जस्ट सी, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट कैसे इसका ये तो सॉल्ट है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बेस कैसे पता लगाओगे, तो मैग्नीशियम में तो पॉजिटिव आयन है, इसके साथ हाइड्रोक्साइड दे दो तो देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और नाइट्रेट आयन तो नाइट्रिक एसिड में रहता है, तो एसिड बनाने के लिए क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन डाल देंगे इसके साथ, तो हाइड्रोजन आयन दे दो तो नाइट्रिक एसिड बन गया HNO3। इज इट नॉट इजी, certainly, but you must try to understand, that only it will be easy. Okay, तो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड दे दो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसका बेस बन गया, और नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट नेगेटिव आयन है तो उसके साथ पॉजिटिव आयन दे दो हाइड्रोजन आयन, तो एसिड बन गया HNO3। इज इट नॉट इजी, ओके। सो इन दिस वे वी कैन, और देखो हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट कैसे, है ना, ये NaCl सॉल्ट कैसा होगा और नेचर क्या होगा, इज इट न्यूट्रल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो इसके एसिड बेस बनाओ, चेक करो एसिड, है ना, कौन सा एसिड बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, क्या क्या है, तो अब देखिए NaCl, तो NaCl का कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बेस क्या है, ये तो सॉल्ट है तो जरूर एसिड बेस रिएक्शन से बना है, तो ये Na के साथ क्या जोड़ेंगे, Na तो पॉजिटिव है, तो Na के साथ तो हाइड्रोक्साइड जोड़ पाएगी, ये नेगेटिव, देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव आयन के सॉल्ट का पॉजिटिव आयन के साथ हाइड्रोक्साइड आयन दे दो तो यू विल गेट द बेस। ओके, और सॉल्ट का नेगेटिव आयन के साथ हाइड्रोजन आयन दे दो यू विल गेट द एसिड। सो वी हैव गॉट मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जांच करो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हम सब क्या बताए, देखो स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इट इज ए सॉल्ट ऑफ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कोई सॉल्ट बनता है देन दैट गिव्स द न्यूट्रल सॉल्ट। Okay, salt formed by reaction between a strong acid and a strong base is called neutral salt. Neutral salt की definition भी हम दिए थे, salts formed by the reaction between a strong acid and a strong base are called neutral salts। तो ये एक तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। अब देखो कैल्शियम नाइट्रेट, है ना, इसका नेचर क्या हो, है ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट। ओके, तो चलो इसका एसिड बेस पता करो, तो ये तो पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन के साथ बेस बनाना है, पॉजिटिव बेस का आयन क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव है, तो अब कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड आयन दे दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये तुम्हारा बेस हो गया, और नाइट्रेट आयन नेगेटिव है तो इसके साथ हाइड्रोजन आयन दे दो, तो नेगेटिव के साथ क्या दोगे, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव दे दिए, ठीक है, तो एसिड हमारा बन गया। एसिड में हाइड्रोजन आयन जो चाहिए और बेस बनाने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, तो हाइड्रोक्साइड आयन का क्या चार्ज है, नेगेटिव है, तो उसको तो बेस पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, इसलिए कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड जोड़ो और नाइट्रेट के साथ हाइड्रोजन आयन दे दो। एसिड बेस बनाना है तो एसिड बनाने के लिए हाइड्रोजन आयन देना पड़ेगा और बेस बनाने के लिए हाइड्रोक्साइड आयन देना पड़ेगा। तो बेस का चार्ज क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन का चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, ठीक है, तो कैल्शियम आयन पॉजिटिव तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव दे दिए, और नाइट्रेट आयन नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आयन दे दिए, तो तुम्हारा एसिड बेस बन गया। अब देखो, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये तो वीक बेस, और नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सो द सॉल्ट इज एसिडिक वन, है ना, क्यों, इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो
nitric acid strong acid or calcium hydroxide weak base. So the salt formed by the reaction of strong acid and weak base is a acidic salt. Okay, तो ये कैल्शियम नाइट्रेट हमारा एसिडिक सॉल्ट हो गया। क्यों ना, ये कैसे बना था, इसको बनाने के समय स्ट्रॉन्ग एसिड लिए थे, वीक बेस लिए थे। और एक एग्जांपल देते हैं, देखो पोटेशियम नाइट्रेट कार्बोनेट, तो इसका भी तो अब एसिड बेस बनाओ, ये तो सॉल्ट है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बेस क्या है, कौन सा एसिड बेस रिएक्शन में ये सॉल्ट बना है वो तो हम निकाल पाएंगे। तो इसका पोटेशियम में पॉजिटिव है, कार्बोनेट है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आयन दे दो, हाइड्रोक्साइड आयन दे दो, तो ये बेस बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ नेगेटिव है तो इसके साथ हाइड्रोजन आयन दे दो, एसिड निकाल देगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया, होगा ना। कार्बन एसिड कैसा बना, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं 1+ और कार्बोनेट का CO3 2-, तो ये 2 ये हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो इसीलिए H2CO3 हो गया। तो ये तो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, लिखे है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। तो इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेस का ऊपर निर्भर करेगा, बेस कैसा है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट, इट इज ए बेसिक सॉल्ट, है ना। इट इज पोटेशियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, तो हमारे एसिड बेस का नेचर से पता चलेगा, तो ये एसिडिक सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट होगा या न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, और एक तो सॉल्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बेस कैसा हो तो इजीली है ना, सॉल्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को देखो, पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन जो हाइड्रोक्साइड आयन दे दो, क्यों हाइड्रोक्साइड नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और कार्बोनेट आयन नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव दे दो तो एसिड बन जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन इजीली मेक। ओके, और फिर अदर एग्जांपल्स दिखाएंगे, तो वेट फॉर दैट। ओके, लेट्स फिनिश इट टुडे हियर।